always say time is precious. Once pass, never come back. So what I think, while you are studying, you should focus on that. We have different channels on the YouTube. You have entertainment channel, you have educational channel, you have music channel. So if you want to entertainment, then subscribe entertainment channel. If you want to listen the music, you subscribe the music channel. But while you are studying, you should focus on that. Okay? So, but student, don't forget to subscribe my channel. Okay, let us start the chapter continuity. In the last classes, we have done till 20. Today, we will do from question number 21. Okay? So, question number 21, discuss the continuity of the function fx equals to sin x plus cos x. B, fx equals to sin x minus cos x, and C, f of x equals to sin x into cos x. Okay? The first function, f of x, is the sum of two functions sin x and cos x. B is the subtract of two functions sin x and cos x. And the third, C, is the product of two functions sin x and cos x. So we have to check the continuity. So let us suppose, let u of x is equals to sin x, and we know that sin function is continuous for all x belongs to R. So we write here which is continuous for all x belongs to R. Okay? And Vx is equals to cos x, which is also continuous for all x belongs to R. ठीक है? साइन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल रियल एक्स, कॉस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है फॉर ऑल रियल एक्स, and we know that the sum of two function is also continuous. That means ux plus vx is also continuous function. तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? a f of x it can be written as sin x को मैंने यहाँ लिया था, sin x ux फंक्शन है, ux प्लस vx ये cos फंक्शन है, जो cos है वो vx है. अब क्या देखना है हमें? ux and vx. This is the sum of two function, sum of ux plus vx continuous function, क्यों? ux plus vx continuous function है. b f of x is equals to ux minus vx. This is the difference of two function, and difference of two continuous function is also continuous, so it will be continuous. ये क्या होगा? Continuous हो जाएगा, continuous function. And similarly, the product of two function ux into vx will be continuous because ux is continuous and vx is continuous. ठीक है? तो ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस हो गया. फर्स्ट क्या है? कंटिन्यूअस है, सेकंड भी कंटिन्यूअस है, एंड थर्ड भी कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया. ओके? क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड एंड कोटेंजेंट फंक्शन. ओके? इसमें कोसाइन फंक्शन, कोसेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन और कोटेंजेंट फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है. तो फर्स्ट में है कॉस फंक्शन. फर्स्ट कौन सा फंक्शन है? कॉस फंक्शन, कॉस एक्स. ओके, वी नो दैट कॉस फंक्शन और कोसाइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर. क्या लिखना है? दिस फंक्शन
function is continuous for all x belongs to R। जितने भी रियल नंबर है, इस रियल नंबर पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस है। नंबर टू कोसेकेंड मीन्स cosec x equals to 1 by sin x, which can be written as ux by vx। देखो ux क्या है, ux equals to 1, here ux equals to 1 constant function which is continuous, constant function continuous होता है। and vx क्या है, sin x है, which is also continuous for all x belongs to R। So ux is continuous, vx is continuous, therefore ux by vx will also be continuous, except sin का जिस पॉइंट पे sin x का वैल्यू 0 होगा उस पॉइंट पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। तो sin x का वैल्यू किस पॉइंट पे 0 होगा, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे फंक्शन का वैल्यू sin x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एक्सेप्ट ऑल रियल नंबर, एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो लिखना कैसे है इसको लिख देयरफॉर 1 by sin x is continuous for all x belongs to R minus इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, दैट मीन्स n पाई। ठीक है, ये n पाई पे फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। sin x नीचे का वैल्यू डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर किस पॉइंट पे 0 होगा, n पाई पे x का वैल्यू जब n पाई पुट करोगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड 1 by 0 इंफिनिटी टर्म हो जाएगा, देयरफॉर फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा उस पे। तो ठीक है ना, दिस cosecant is continuous for all x belongs to R except integral multiple of pi। sec x can be written as cos x, and it is defined for all x belongs to R except 2n plus 1 pi by 2। That means और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे cos x का वैल्यू 0 होगा और 1 by 0 इंफिनिटी होगा। दैट मीन्स फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा। तो ये फंक्शन डिफाइन किस पे होगा, सभी रियल वैल्यू पे फंक्शन डिफाइन होगा एक्सेप्ट 2n plus 1 पाई बाई 2 पे छोड़ के। ठीक है, अभी देखो सेम ये कांस्टेंट फंक्शन है, cos x भी वन कांस्टेंट फंक्शन है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, cos फंक्शन कंटिन्यूअस एवरीवेयर, तो 1 by cos x भी क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसमें भी इसको क्या करना है, लेट ux इक्वल्स टू 1 कांस्टेंट फंक्शन the constant function which is
which is continuous and Vx equals to cos x is also continuous. Therefore, ux by Vx is equals to 1 by cos x equals to sec x is continuous. ठीक है, ये भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा. नंबर 4 में क्या है, नंबर 4 में को टेंजेंट that is equals to cot x and it can be written as cos x by sin x. ठीक है, is equals to इसको vx ux by vx ले देगा. ठीक है, अब देखो this function is also defined. This function is defined for all x belongs to R except sin x का वैल्यू कहाँ में 0 होगा, n पाई पे फंक्शन का वैल्यू 0 होगा, इसलिए ये n पाई उसका डोमेन में नहीं होगा. ठीक है, नाउ ux and vx both are continuous. Therefore their cosine function ux by vx equals to cos x by sin x, that will be equals to cot x is continuous for all x belongs to R except n pi. ठीक है, तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस हो गया. इस तरह से शो कर सकते हैं कि फंक्शन कहाँ में कंटिन्यूअस है और कहाँ में फंक्शन डिफाइंड नहीं है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर fx इक्वल्स टू sin x by x if x is less than 0 and equals to x plus 1 if x is greater than equals to 0. ठीक है, इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है. तो यहाँ में तो केस करके लिखो, केस 1. केस 1 क्या है, f of x is equals to sin x by x. Okay, and sin x by x केस 1 में if x is less than 0 लेना है. sin x क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है. cos x भी क्या, सॉरी x भी क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है और ये कंटिन्यूअस होगा. therefore cosine function is continuous for all x less than 0. x का वैल्यू जब 0 से छोटा होगा उस पॉइंट पे sin x by x फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा. मींस x लेस देन 0 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है. केस 2 f of x, केस 2 में क्या है, if x is greater than equals to 0 तो फंक्शन कैसा है, f of x equals to x plus 1 being a polynomial function. क्या है, being a polynomial function and it is continuous.
कंटिन्यूअस। तो देखो x लेस देन 0 के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, x ग्रेटर देन के लिए भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अभी चेक करना है कि उस पॉइंट x इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो अभी देखो x इक्वल्स टू 0 पे चेक करने के लिए ये है x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 0 का जो राइट हैंड नेबरिंग पॉइंट होगा उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 0 प्लस एच से, और लेफ्ट हैंड नेबरिंग पॉइंट होगा उसको 0 माइनस एच से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0 प्लस एच पे फंक्शन का वैल्यू लेना है, कौन सा होगा, x प्लस 1, और लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन का वैल्यू क्या है, साइन x बाई एक्स। अभी चेक कर लेते हैं, एट x इक्वल्स टू 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखना है, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h लेफ्ट हैंड नेबरिंग पॉइंट पे, दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन, लेफ्ट हैंड के लिए ये फंक्शन लेना है। ठीक है, तो x का जगह 0 माइनस h बाई 0 माइनस h। ठीक है, और ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 साइन h बाई h। और याद होगा क्लास 11 का जब लिमिट चैप्टर किया होगा तो साइन h बाई h व्हेन s टेंड्स टू 0 इसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, राइट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0, और राइट हैंड के लिए लिमिट फंक्शन कौन सा लेना है, x प्लस 1। तो इसमें x का जगह 0 प्लस h प्लस 1, एंड व्हेन s टेंड्स टू 0 वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो गया। तो लेफ्ट हैंड पे और राइट हैंड पे फंक्शन का वैल्यू इक्वल आया। अभी f ऑफ 0 पे फंक्शन का वैल्यू, f ऑफ 0 के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, देखो यहाँ में दिया हुआ है f ऑफ 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो फंक्शन लेना है ये। तो इसमें 0 प्लस 1 पुट करेगा तो आएगा 1। ठीक है, here लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट and the value of the function at that point means at 0 all are equal, therefore the function is also continuous at x equals to 0, means क्या मिला, there is no point of discontinuity, this function is continuous for all x belongs to R। clear? ठीक है ना, लिख लेगा, नीचे लिख लेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f of 0, therefore the function is continuous at x equals to 0. Okay, hence there is no point of discontinuity of this function. ठीक है, next question number 24. Question number 24, determine if f defined by f of x is equals to x squared sin 1 by x if x is not equals to 0, and f of x equals to 0 if x equals to 0 is a continuous function. ये चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो यहां में पॉइंट कौन सा है, 0, पॉइंट ले लेता हूं x इक्वल्स टू 0, व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0। देखो x का वैल्यू जब 0 नहीं होगा तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आइदर x विल बी ग्रेटर देन 0 और x विल बी लेस देन 0, या तो x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या फिर x का वैल्यू 0 से छोटा होगा। तो बड़ा होगा तब भी और छोटा होगा तब भी जो फंक्शन होगा वो x स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई एक्स होगा, और छोटा भी होगा तो फंक्शन x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स होगा, और जब x इक्वल्स टू 0 है तो फंक्शन का वैल्यू 0 है। सॉल्यूशन में क्या लिखना है, हमें सॉल्यूशन में f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन 1 by x, कब, if x is not equals to 0, तो फंक्शन ये है x स्क्वायर इंटू साइन 1 by x, इसको हम लोग ux इंटू vx भी ले सकते हैं। देखो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दिख रहा है ना, ये x स्क्वायर कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है,
साइन 1/x कौन सा फंक्शन है? ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो ux अलजेब्रिक फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है और ट्रिगो फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन ऑल्सो कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। क्या लिखेगा हेयर? ux is continuous and vx is also continuous, therefore product ux into vx will be continuous for all x not equals to 0। जब x का वैल्यू 0 नहीं होगा तो फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। और when x equals to 0 तो कांस्टेंट फंक्शन है। अभी चेक करना है कि x equals to 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। मींस उसका when x is greater than 0 and less than 0 पे तो फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। अभी चेक करना है कि फंक्शन एट x equals to 0 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है। इसके लिए देखो जीरो का जो राइट हैंड नेबरिंग पॉइंट होगा 0 प्लस h होगा और लेफ्ट हैंड नेबरिंग पॉइंट 0 माइनस h होगा। तो लिखेगा एट x equals to 0 लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h इक्वल्स टू लिमिट s टेंड्स टू 0 और लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन ये लेना है और उसमें 0 माइनस एच स्क्वायर साइन 1/x का जगह 0 माइनस एच, ठीक है, ये करना है। अब देख लो when h टेंड्स टू 0, ठीक है, when h टेंड्स टू 0 होगा तो ये तो टोटल 0 हो जाएगा, 0 इनटू और साइन का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है? -1 से 1 के बीच में लाई करता है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है। तो इसके बीच में कोई भी वैल्यू होगा और उसको जब 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल गया? 0 हो गया। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 plus h that will be equals to limit s tends to 0 plus h square sin 1/0 plus h, ठीक है। और इसमें भी सेम हो जाएगा, ये भी वैल्यू क्या मिलेगा? 0 होगा। नाउ f ऑफ 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 है, ऑलरेडी गिवन है कि f ऑफ 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 है। तो यहाँ में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। देयरफॉर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू sin x माइनस cos x if x is not equals to 0 and f of x equals to -1 if x equals to 0। मीन्स ये फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, एग्जामिन करनी है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। इसके लिए क्या करना है? लिखना है यहां में फंक्शन कैसा है? f of x is given that sin x minus cos x when x is not equals to 0, ठीक है। तो सपोज करना है लेट ux इक्वल्स टू साइन x, ठीक है। ux क्या सपोज करना है? साइन x एंड vx cos x। अब देखो साइन x क्या है? साइन x फंक्शन कंटिन्यूअस है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। cos x is also continuous function for all x belongs to r, and we know that the difference of two continuous function is also continuous। Okay, so here you will write sin x which is continuous
continuous for all x belongs to R. Vx is equals to cos x, which is also continuous for all x belongs to R. तो Vux भी कंटिन्यूअस है, Vx भी कंटिन्यूअस है, तो डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा. Therefore f of x is equals to ux minus vx, which is the difference of two continuous function, which is the difference of two continuous function, and it is continuous. ठीक है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा. ठीक है ना, मीन्स मैंने ये दिखा दिया विच इज एंड इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x is not equals to 0. Now we have to check whether the function is continuous at x equals to 0 or not. So at x equals to 0, ठीक है, तो 0 पे चेक करने के लिए 0 ये पॉइंट है, इसका राइट हैंड नेबरिंग पॉइंट 0 प्लस एच, लेफ्ट हैंड नेबरिंग पॉइंट 0 माइनस एच. ठीक है, और देखो लेफ्ट हैंड नेबरिंग पॉइंट और राइट हैंड नेबरिंग पॉइंट दोनों पे फंक्शन क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या लिखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 minus h, that will be equals to limit h tends to 0, और 0 माइनस h पे कौन सा फंक्शन लेना है, साइन x माइनस कॉस x. तो क्या हो जाएगा, साइन x का जगह क्या पुट करना है, 0 माइनस h माइनस कॉस x का जगह 0 माइनस h पुट करना है. ठीक है, तो व्हेन h टेंड्स टू 0, h का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये साइन 0 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा वैल्यू 0 माइनस, एंड व्हेन h टेंड्स टू 0 देन cos 0 इज 1, सो वैल्यू विल बी माइनस 1. ओके, नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट h tends to 0 f of 0 plus h, that will be equals to limit h tends to 0 sin x का जगह 0 plus h minus cos 0 plus h, and when h tends to 0, so sin 0 0, cos 0 1, so it will be minus 1, and f of 0 is minus 1. it is already given here, ये ऑलरेडी दिए हुए है, f of 0 पे फंक्शन का वैल्यू माइनस 1 होगा. तो अभी देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस 1, राइट हैंड लिमिट माइनस 1, एंड उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू माइनस 1. दैट मीन्स दिस फंक्शन इज continuous at x equals to 0 also. Here left hand limit is equals to right hand limit is equals to f of 0, hence function is continuous at x equals to 0. That means this function is continuous everywhere. Okay, सब जगह पे फंक्शन चेक कर लिया, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोटल क्वेश्चन नंबर 26, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है. यहाँ से 26 से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है. इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k.
के का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू के कॉस एक्स बाई पाई माइनस 2x if x is not equals to pi by 2 and f of x equals to 3 if x equals to pi by 2 is continuous at x equals to pi by 2। क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x equals to pi by 2 पे, तो k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फिर से याद करो, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू तीनों क्या होगा, इक्वल होगा। और यही हम लोग यूज करके के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ 26, 27, 28, 29 सेम क्वेश्चन है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर ये इस बार भी 2023 में क्वेश्चन में आया था, के का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो यहाँ भी तुम्हारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छे से समझो, के का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले दिया हुआ है कि फंक्शन एफ ऑफ पाई बाई 2 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 माइनस h दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन लेना है, उसमें k cos x का जगह क्या पुट करना है, पाई बाई 2 माइनस h बाई पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस h। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, k और cos पाई बाई 2 माइनस h क्या हो जाता है, साइन पाई बाई h, सॉरी साइन h हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन h बाई, और देखो ये वेन ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो पाई आ जाएगा और ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस और माइनस इंटू होके 2h मिलेगा। ठीक है, और इसमें लिमिट भी लगाना होगा, लिमिट h टेंस टू 0 दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 k बाई 2 इंटू साइन h बाई h। और याद है क्लास 11 में लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h क्या हो जाता है, 1, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, k बाई 2 इंटू 1 दैट विल बी इक्वल्स टू k बाई 2। अभी क्या है, सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू होगा, तो राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करने का जरूरत भी नहीं है बिकॉज फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस गिवन है, तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट को उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू को इक्वल कर देने से वो के का वैल्यू मिल जाएगा। या अगर राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हो उससे भी तुम के का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो लिखिएगा हमें सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिला, k बाई 2 दैट विल बी इक्वल्स टू उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या था, 3 था, तो यहां से k का वैल्यू क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज k इक्वल्स टू 6। तो ये था k का वैल्यू। तो इस तरह से फाइंड आउट करना है, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करो, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करो और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू, इसमें से जरूरी नहीं है कि तीनों फाइंड आउट करके k का वैल्यू मिलेगा, कोई दो इक्वल करने से k का वैल्यू मिल सकता है, लेफ्ट हैंड लिमिट को और यहां से उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू को, दोनों को मैंने इक्वल किया है, वहां से k का वैल्यू क्या मिला, 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27, क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन fx इक्वल्स टू kx स्क्वायर इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड f of x इक्वल्स टू 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। यहां में क्या दिया हुआ है, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। सेम क्वेश्चन है नंबर 26 जैसा, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या करना है, इक्वल करना है। तीनों को नहीं करेगा, कोई भी एक लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू को इक्वल करके के का वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ में पहले हम लोग देख लेते हैं कि एफ ऑफ टू कितना दिया हुआ है, देखो एफ ऑफ 2 कितना दिया हुआ है, के एक्स स्क्वायर
2 के लिए कौन सा फंक्शन लेना होगा, ये लेना पड़ेगा, और उसमें k इंटू एक्स का जगह 2 पुट करना पड़ेगा, तो ये मिल जाएगा 4k। ये था पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, अभी हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट h टेंस टू 0, किस पॉइंट पे, 2 पे, तो क्या लेना होगा, f ऑफ 2 माइनस h, दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा वैल्यू लेना है, ये फंक्शन लेना है, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0, और k x का जगह क्या लेना पड़ेगा, 2 माइनस h होल थिंग स्क्वायर, एंड व्हेन s टेंस टू 0 तो क्या मिल जाएगा, फिर से 4k मिल जाएगा। तो देखो इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू से k का वैल्यू नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों सेम मिल गया, 4k। ठीक है, तो अभी राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करके चेक करना पड़ेगा। राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 2 प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, और 2 प्लस h पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, 3 है, और ये क्या हो जाए, तो राइट हैंड लिमिट कितना मिला, 3 मिला। अब देखो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को इक्वल करने से, ये 4k और 3k इक्वल करने से वहां से k का वैल्यू मिल जाएगा, या फिर राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू दोनों को इक्वल करने से भी k का वैल्यू मिलेगा। तो हम लोग कोई दो मीन्स यहाँ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को इक्वल कर देता हूं मैं। लिखना है सिंस f इज continuous at x equals to 2, therefore क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड कितना मिला था, 4k, दैट विल बी इक्वल्स टू, और राइट हैंड कितना मिला था, 2। यहां से k का वैल्यू, सॉरी राइट हैंड 3 मिला था, तो यहां से k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/4। क्लियर, सिंपल है ना, ये सिंपल है, पहले से भी सिंपल लग रहा होगा। पहले लेफ्ट हैंड राइट हैंड और दोनों को इक्वल करके k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, k का वैल्यू फाइंड आउट करने आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, find the value of k so that the function fx equals to kx plus 1 if x is less than equals to pi, and f of x equals to cos x if x is greater than pi, is continuous at x equals to pi। ठीक है, तो यहाँ में भी पहले f किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, पाई पे, तो f ऑफ पाई पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, कौन सा लेना है, f ऑफ पाई के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, ये या ये, देखो यहाँ भी लिखा हुआ है लेस देन और इक्वल्स टू, मीन्स x इक्वल्स टू पाई पे ये फंक्शन लेना है, और उसमें x का जगह क्या पुट कर देना है, पाई, तो ये हो जाएगा पाई के पाई प्लस 1। ठीक है, अभी राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ क्या, पाई प्लस h, दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, और पाई प्लस h के लिए कौन सा फंक्शन लेना है, cos, तो ये हो जाएगा cos पाई प्लस h। ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, और पाई प्लस h कौन सा क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, माइनस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस cos h। ठीक है, और व्हेन लिमिट h टेंस टू 0 तो वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से लिखेगा सिंस f इज continuous at x equals to pi, therefore
ये दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स के पाई प्लस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू -1। ठीक है, इसको सॉल्व करेगा, के पाई इज इक्वल्स टू, ये इसको ट्रांसपोज करेगा इस साइड तो हो जाएगा -2 एंड दिस इम्प्लाइज के इज इक्वल्स टू -2/पाई। ठीक है, तो ये मिल गया के का वैल्यू। क्लियर है ना। देखो मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं फाइंड आउट किया है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करता तो ये मिलता फिर से के पाई प्लस 1। तो यहाँ राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू फाइंड को इक्वल करने से के का वैल्यू मिला। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 भी सेम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 5 and f of x equals to 3x minus 5 when x is greater than 5 is continuous at x equals to 5। ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे, 5 पे। तो यहाँ में फिर क्या करना है, हमें उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू मीन्स f of 5। अब देखो f of 5 के लिए कौन सा फंक्शन लेना होगा, यहाँ में x is equals to 5 के लिए ये फंक्शन यूज किया है। तो यहाँ में k इंटू 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5k प्लस 1। ठीक है, अभी राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 और f ऑफ 5 पे था तो 5 प्लस h लेना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 अब 5 प्लस मीन्स राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये लेना है 3x माइनस 5, लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 3x का जगह क्या लेना है 5 प्लस h माइनस 5। ठीक है, और व्हेन h टेंस टू 0 हो जाएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, देख लो, व्हेन h टेंस टू 0 यहाँ में 0 पुट कर देगा तो 5 3 आर 15 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर लिखेगा सिंस f is continuous at x equals to 5 therefore राइट हैंड लिमिट कितना है 5, राइट हैंड लिमिट कितना है 10 और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या है 5k प्लस 1, तो दोनों को इक्वल कर देगा। देयरफॉर 5k प्लस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 10 और इसको जब सॉल्व करेगा तो 5k इक्वल्स टू 9 दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल्स टू 9/5। सिंपल है ना। देखो पहले कर रहा होगा तो थोड़ा लग रहा होगा क्या कर रहा है, अभी लास्ट वाला में तो कुछ है ही नहीं और कितना सिंपल भी है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है ना, तो इसको जितना टाइम प्रैक्टिस कर सकता है करो, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ से कंटिन्यूटी से। क्लियर है ना, k इक्वल्स टू 9/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये देखो थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b such that the function defined by f(x) equals to 5 if x is less than equals to 2, ax plus b if x lie between 2 to 10 and f of x equals to 21 if x is greater than equals to 10। तो इससे पहले एक वेरिएबल्स था k का वैल्यू फाइंड आउट करना था, यहाँ में 2 वेरिएबल्स है a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए फंक्शन भी देखो कितना कितना पॉइंट पे कौन कौन सा पॉइंट है, 2 है और 10 है। ठीक है, 2 से जब छोटा है तो फंक्शन का वैल्यू 5, 2 और 10 के बीच में फंक्शन का वैल्यू क्या है ax प्लस b और x से ग्रेटर देन पे फंक्शन का वैल्यू क्या है 21 है। ठीक है, तो एट x इक्वल्स टू 2 पे लेते, एट x इक्वल्स टू 2 पे f ऑफ 2 का वैल्यू, f ऑफ 2 का वैल्यू कितना है 5 है। x लेस देन इक्वल्स टू 2 मीन्स x का वैल्यू जब 2 होगा तो फंक्शन का वैल्यू 5 है। ठीक है, और इसका राइट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h दैट विल बी इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 और 2 प्लस एच मीन्स ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है, ए एक्स प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए एक्स का जगह 2 प्लस एच प्लस बी एंड व्हेन एच टेंस टू 0 तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए प्लस बी, ये हो जाएगा ट्वाइस ए प्लस बी। ठीक है, फिर लिखिएगा सिंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सिंस फंक्शन इज continuous at x equals to 2, therefore क्या हो जाएगा, ये देखो 2a राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या है 2a प्लस b और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या था 5, तो ये एक इक्वेशन मिल गया तुम्हें। ठीक है, ये क्या मिला, फर्स्ट इक्वेशन मिला। अभी 10 पे भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो 10 का लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 10 पे फंक्शन का वैल्यू ये भी इक्वल होगा, तो एफ ऑफ नाउ क्या लिखिएगा, एफ ऑफ 10, एफ ऑफ 10 पे देखो यहाँ व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, x का वैल्यू जब 10 होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या है 21 है, तो एफ ऑफ 10 मिल गया 21। अब यहां से हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जब x का वैल्यू 10 से छोटा है तो ये फंक्शन ए एक्स प्लस बी है। ठीक है, तो ओके, नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट कितना पे 10 पे, एट कितना x इक्वल्स टू 10 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f of 10 minus h that will be equals to limit h tends to 0 और उसके लिए फंक्शन कौन सा लेना है, ए एक्स प्लस बी, तो a और x का जगह 10 माइनस एच प्लस बी, और जब ये पुट करेगा तो क्या मिल जाएगा 10a प्लस बी। ठीक है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट 10 पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, देयरफॉर यहां से हम क्या लिख देगा 10a प्लस बी दैट विल बी इक्वल्स टू 21, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये क्लास 10 का है, क्लास 10 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा होगा ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ में 2 वेरिएबल्स a एंड b है, 2 वेरिएबल्स a एंड b है, 2 इक्वेशन दिए हुए हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसको सॉल्व करना है। तुम्हारे पास बहुत सारा मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एलिमिनेशन मेथड था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था और एक ग्राफिकल मेथड भी था। ठीक है, तो ग्राफ क्लास 10 में तो आता था श्योर, तो इसको तुम बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, जो भी मेथड तुमको इजी लगता है उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 तुमको क्या मिलेगा, a और b का, इसको अभी क्या कर देना है 2 माइनस 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस ये माइनस और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो 10a माइनस 2a क्या हो जाएगा 8a हो जाएगा, और ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल होगा। यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड, मीन्स मैंने b को एलिमिनेट कर दिया है, और यहाँ में मिल जाएगा 21 माइनस 5 कितना हो जाता है 25 माइनस 5 16। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज देयरफॉर a का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा 16/8 दैट विल बी इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो a का वैल्यू मिल गया। अभी a का वैल्यू 2 मिला, उस वैल्यू 2a का वैल्यू को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में जब पुट कर देगा, ठीक है, क्या लिखेगा पुटिंग a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1, तो यहां से b का वैल्यू क्या मिल जाएगा, देखो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो b का वैल्यू क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो a और b का वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो।
ये भी सिंपल है, थोड़ा सा पीछे वाले क्वेश्चन से क्या है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सिंपल है। यहाँ में 2 पॉइंट दिया हुआ था, 2 पे और 10 पे कंटिन्यूअस था, तो 2 पे हमने एक रिलेशन फाइंड आउट किया और 10 पे एक रिलेशन फाइंड आउट किया ए और बी में, और 2 इक्वेशन मिलने के बाद दोनों इक्वेशन को आफ्टर सॉल्विंग बोथ इक्वेशन वी विल गेट ए वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ओके, क्लियर टिल 30? ओके, क्वेश्चन नंबर 31, so that the function defined by fx is equals to cos square x is continuous function। दिखाना है कि ये fx जो है वो continuous function है। continuous function पॉइंट नहीं दिया है, मीन्स continuous function सब जगह होगा, एवरीवेयर, वो फंक्शन दिखाना है कि फंक्शन continuous है एवरीवेयर। ठीक है, तो फंक्शन कैसा है, f of x equals to cos x स्क्वायर दिए हुए। ठीक है, यहाँ में सपोज करना पड़ेगा, देखो कंपोजिट फंक्शन से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन, तो यहाँ में हम सपोज कर लेते हैं लेट g ऑफ x इज इक्वल्स टू cos x and h of x that will be equals to x square, so that f of x कैसा हो जाएगा, g of h। ठीक है, g of h that means g of hx फंक्शन, ये कंपोजिट फंक्शन है। ठीक है, अब देख लो ये hx क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। hx is polynomial function, and it is continuous। ठीक है, continuous for all x belongs to r। ठीक है ना, ये ऑल रियल नंबर के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है। अभी जो एच एक्स होगा उसका वैल्यू होगा, देखो एच एक्स का वैल्यू जो मिलेगा वो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, तो ये जो इसका जो वैल्यू होगा वो 0 से कहां तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा, इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल होगा। मीन्स एच एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक हो सकता है, 0 टू इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल एट 0। अभी f ऑफ x है, f ऑफ x ये है g ऑफ h ऑफ x। ठीक है ना, तो ये भी क्या होगा, विल बी continuous for all hx belongs to 0 to infinity। ठीक है, तो ये फंक्शन भी क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी के बीच में कंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 भी सेम है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय मॉड cos x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है ना, तो यहाँ में फंक्शन किस तरह का है, फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ cos x। ठीक है, तो यहाँ में सपोज करना है लेट g ऑफ x इज इक्वल्स टू x मॉड x एंड h of x is equals to cos x। ठीक है, so that g of h x is equals to f of x। ठीक है, नाउ देख लो एच एक्स क्या है, cos x, एच एक्स equals to cos x which is continuous
continuous for all x belongs to r, x belongs to r। ठीक है, सभी रियल वैल्यू पे फंक्शन क्या है, सभी रियल नंबर पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। एंड एच एक्स का जो वैल्यू होगा, एच एक्स का वैल्यू, कॉस एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 के बीच में। तो एच एक्स का वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1 के बीच में। ठीक है, therefore f of x that will be equals to g of h x will be continuous for all gx belongs to, for all hx belongs to -1 to 1। ठीक है, सेम क्वेश्चन था वैसे ही। मीन्स ये फंक्शन जो होगा ये -1 से 1 के बीच में कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34। 33 में f ऑफ x इक्वल्स टू mod x है, और mod x क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूअस होता है एवरीवेयर। ठीक है, 34 में भी क्या है, 34 में डिफरेंस ऑफ टू मॉडुलस फंक्शन है। तो मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो डिफरेंस ऑफ मॉडुलस फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एवरीवेयर। दैट मीन्स इन 34 देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है ना, क्योंकि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एवरीवेयर। 33 भी क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा क्योंकि एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स है, और मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है ना। तो आई थिंक ये 33 और 34 यू कैन डू इट। ओके, ये करने का जरूरत नहीं है, तो मैं खुद से ट्राई करोगे हो जाएगा। सिर्फ लिखना है फंक्शन इज मॉडुलस फंक्शन, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है ना। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडेज सेशन माय डियर स्टूडेंट्स।